ladies and gentlemen, a very warm welcome to you on Business Today's television and in our special series of Market Gurus, where you get to meet the finest brains on the Lal Street, professionals and individuals who've made money for their clients in all sorts of market phases. It's our extreme pleasure to welcome our guest, Mr. Aditya Khemka, Chief Investment Officer at Incred Asset Management. Mr. Khemka runs one of the most popular and one of the most productive PMS schemes in the healthcare space and has a very strong grasp on the pharma sector. Apart from that, he has invested over the last 3 decades and has always come out on tops as far as the Lal Street is concerned. Let's just understand how Mr. Khemka is understanding the markets at this point of time. Good afternoon to you, Aditya ji, and as usual, a very warm welcome. आपकी परफॉर्मेंस देख के तो लोग बिल्कुल चकित हैं. बताइए, इस वक्त आपको बाजार कैसा लगता है? कहाँ पर जीएसटी कट के बाद, इतने अच्छे अक्टूबर सेल्स के बाद वैल्यू अभी भी नजर आती है? Good afternoon, Shailesh ji, and thanks for inviting me. So at this point, Shailesh ji, market में जो recent rally आई after the GST cut and after the income tax rationalization, ये जो वॉल्यूम ग्रोथ अभी हमें ऑटोज में देखने मिल रहा है या एज अ रिजल्ट ऑटो एंसिलरीज में भी देखने मिल रहा है, ये अभी थोड़ा अर्ली डेज है मेरे हिसाब से टू कमेंट वेदर ये सस्टेनेबल होगा या ये सॉर्ट ऑफ फ्लैश इन द पैन है, बिकॉज ये फेस्टिव क्वार्टर भी है, तो फेस्टिव क्वार्टर के कारण भी थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ लंपी हो जाता है इन द फेस्टिव क्वार्टर्स. सो आई थिंक लुक, अगर आप मार्केट का मूवमेंट देखेंगे तो मार्केट आपको ये बोलना चाह रहा है कि मार्केट बिलीव करता है कि ये सस्टेन होगा. Whereas to my mind, when I talk to small businessmen, large business owners, a lot of them don't sound very confident. उनको ऐसा नहीं लगता कि ये सस्टेन होगा. वो ये जरूर बोल रहे हैं कि हाँ, इस महीने अच्छा हुआ है, लास्ट के 3 महीने में अच्छा हुआ है, बट वो ऐसा नहीं बोल पा रहे हैं कि नहीं, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, अब तो मतलब अच्छे दिन आगे टाइप्स. सो मुझे अभी भी 100% श्योर नहीं है कि ये वॉल्यूम ग्रोथ सस्टेन होगा, एंड हेंस मैं अभी भी थोड़ा सा कॉशियस हूँ. मुझे लगता है मार्केट की वैल्यूएशंस इज इन द अपर बैंड ऑफ द हिस्टोरिकल रेंज, and ROEs and earning growth are still not on the upper band of the historical range. In fact, is closer to the lower band of the historical range. So मुझे लगता है मार्केट में अभी भी डाउनसाइड रिस्क है. Having said that, अगर ये वॉल्यूम ग्रोथ बरकरार रह गई तो आप मार्केट से यहाँ से भी 10-15% रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं अगले 12 महीने में. चलिए, with that background in mind, Aditya ji, let's get into the process of investment. As one of the most popular and the most productive PMSs, you get a monthly you get a monthly fresh investments into the PMS. At this stage, what is the deployment schedule? What looks good to you? What is it that you are not touching at all? Perfect. So what looks good to us is a slightly smaller list at this point, given that हम discretionary consumption पे बहुत bullish नहीं है. So हमें at this point we are thinking about picking selective PSU banks. PSU banks क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि volume growth देख लीजिए, NPA levels देख लीजिए, ROEs देख लीजिए. The larger PSU banks have come very close to the larger private banks on these operational metrics. Whereas अगर आप उनका वैल्यूएशन बैंड देखेंगे तो वैल्यूएशन बैंड अभी भी प्राइवेट बैंक से काफी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे है, जो हिस्टोरिकली भी था, बट हिस्टोरिकली इसलिए था क्योंकि पीएसयू बैंक्स के ऑपरेशनल मेट्रिक्स प्राइवेट बैंक से बहुत इंफीरियर होते थे, ऑल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, मार्जिन एंड इन टर्म्स ऑफ एनपीएस. अभी ये तीनों ऑपरेशनल मेट्रिक्स हैव शिफ्टेड. द ग्रोथ इज सिमिलर टू प्राइवेट, द आरओईज आर सिमिलर टू प्राइवेट, द एनपीए लेवल्स आर सिमिलर टू प्राइवेट. तो अभी जो हिस्टोरिकली जो ये सिग्निफिकेंट डिस्काउंट होता था बिटवीन पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स, हमें लगता है ये डिस्काउंट अब ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा. यू विल सी पीएसयू बैंक्स valuations converging towards the private banks valuations. हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत प्रीमियम प्राइवेट को मिलेगा for better quality of management perhaps, but इतना significant discount नहीं होगा जितना अभी है. So I think that is why we like PSU banks. We also like selective NBFCs, especially those that do secured lending, MSME lending. Again, because सरकार का वहाँ पे the focus of the government is higher.
एंड बिकॉज फोकस है वहाँ पे, दे आर गिविंग लोन गारंटीज, तो हमें लगता है वहाँ पे एसेट क्वालिटी रिस्क कम है। एंड दी स्टॉक्स आर बीटन डाउन, इनकी वैल्यूएशन इनके हिस्टोरिकल रेंजेस से बहुत नीचे आ गई है, एंड विच हेल्प्स अस टू सॉर्ट ऑफ गेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन वी इन्वेस्ट। तो लेंडिंग बिजनेसेस में हमें एनबीएफसी एंड पीएसयू बैंक्स इस टाइम पे अच्छे लग रहे हैं। अदर देन दैट वी लाइक हेल्थ केयर, ऑब्वियसली हेल्थ केयर डिलीवरी इज अ बिजनेस दैट हैज एसेंशियली गॉट प्राइसिंग पावर। तो अगर मानिए इन्फ्लेशन आता भी है, बिकॉज यू नो अक्रॉस द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स आर कटिंग इंटरेस्ट रेट्स, तो एक रिस्क है कि इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ सकता है ग्लोबली। और अगर इन्फ्लेशन ग्लोबली बढ़ता है तो एज अ इन्वेस्टर we look out for businesses that have the ability to price their business well, जो अपने margins maintain कर सके even in an inflationary environment. And that is where I think healthcare services becomes a very, very important part of our portfolio, where we are investing capital because they can protect their margins even in an inflationary situation. Other than that, the other pocket that we are also liking at this point is EPC players. Government capex is very, very good. And EPC players, there's a lot of infra development happening, and EPC players obviously are a part of that portfolio. सो ये 3-4 पॉकेट्स है जहां हम पैसा अभी सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं. व्हाट आर वी कंप्लीटली अवॉइडिंग एट दिस पॉइंट? वी आर कंप्लीटली अवॉइडिंग आईटी, स्पेशली आईटी सर्विसेज. Now why are we avoiding IT services? We are avoiding IT services because हमें उस लार्ज बेस पे जो ये आईटी सर्विस कंपनीज बैठी हैं वहाँ पे अब ग्रोथ की विजिबिलिटी इंक्रीमेंटली कम होते जा रही है. हमें लग रहा है कि इन्होंने ये एआई एमएल की जो बस है वो थोड़ी बहुत मिस कर दी है या कम्प्लीटली मिस कर दी है, एंड हेंस आईटी सर्विसेज में हमें अभी ग्रोथ की कोई विजिबिलिटी नहीं है. तो ये बात सच है कि ये स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी गिर चुके हैं, दे आर ऑलरेडी वेरी चीप, बट यहाँ से भी पैसा बनाने के लिए स्टॉक्स हैव टू शो सम ग्रोथ, एंड वो ग्रोथ की विजिबिलिटी अभी बहुत बहुत लिमिटेड है. तो वी आर अवॉइडिंग आईटी सर्विसेज एट दिस पॉइंट. Wonderful. So, InCred Asset Management as a theme is bullish on PSU banks, select NBFCs that do secured lending, and of course small EPC players, and avoiding IT altogether. Aditya ji, let's drill this a little further before we get into the core portfolio of your healthcare schemes. I wish to understand on behalf of our viewers, what are the 3 or 4 or maybe more PSU banks that you may have added in the last 6 months at InCred Asset, and any NBFCs that are freshly into your broader PMS? So 3-4 PSU बैंक के नाम तो नहीं लूंगा, but I will name one of them where we have already built our position. The other are under construction, so I can't really take the names where we are continuously buying at this point. But the one जहाँ पे हमने काफ़ी significant weight already build कर लिया वो है कैनरा बैंक. कैनरा बैंक बिल्ड करने का रीज़न सिंपल है कि अभी वो स्टॉक 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे है, whereas if you look at ROEs, if you look at loan growth, if you look at NPA quality, they are all close to the HDFC banks or the Axis banks of the world, और वो स्टॉक्स 2.5-3 टाइम प्राइस टू बुक पे चल रहे हैं. तो विद सच अ लार्ज गैप बिटवीन HDFC का वैल्यूएशन या एक्सिस बैंक का वैल्यूएशन वर्सेस कैनरा बैंक का वैल्यूएशन, बट ऑपरेटिंग मेट्रिक्स काफ़ी सिमिलर हो चुके हैं, तो हमें लगता है कि कैनरा बैंक में री रेटिंग बनेगी. ऑल्सो कैनरा बैंक की 2 सब्सिडरीज लिस्ट हो गई है, विच इज कैनरा HSBC एंड कैनरा रबेको. सो विद द सब्सिडरी लिस्टिंग, वैल्यू डिस्कवरी बिकम्स ईजियर, इट बिकम्स मोर अपेरेंट टू द इन्वेस्टर्स एज टू व्हाट द कंपनीज होल्डिंग वैल्यू शुड बी, and that should help the business see more valuation up move. So that is one PSU bank that we have added, and there are a couple of PSU banks which are in the process of adding, hence I am avoiding taking their names. Coming to the second part of your question was on the NBFC side. So on the NBFC side we have Arman Financial, again secured lender hai, again Arman की asset quality, the ability to underwrite good quality loans have been extremely high across cycles, और उस कारण से बुरे से बुरे वक्त में भी अरमान अपने एनपीए के नंबर्स को काफ़ी नीचे स्तर पर मेंटेन कर पाता है, जो कि अदर एनबीएफसीज में आप देखेंगे बुरे टाइम पे काफ़ी स्पाइक कर जाते हैं एसेट क्वालिटी के नंबर्स. तो हमें लगता है कि अरमान इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू अंडरराइटिंग क्वालिटी इन इट्स ब्रैकेट. तो हमने अरमान ऐड किया है एनबीएफसी स्पेस में, और अभी एनबीएफसी स्पेस में हम लोग 2-3 नाम अगेन वी आर बिल्डिंग सम पोजीशन, सो अभी मैं उनका नाम अवॉइड करूंगा. ओके जी. आदित्य जी, ऐसा करते हैं, व्यूअर्स का भला भी हो जाए, आप भी किसी नियम का उल्लंघन ना करें, तो मैं कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिसमें आपको नाम बताने की आवश्यकता नहीं है,
वो जो अक्लमंद है अपने आप ही समझ जाएगा। ये जो आप PSU बैंक्स में अभी पोजीशंस बना रहे हैं, क्या इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कैनरा बैंक के नीचे है या कैनरा बैंक के ऊपर है? नीचे। नीचे, बस बाकी अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। कुछ रिसर्च तो सामने खरीदने वाला भी करेगा, वरना फिर क्या फ़ायदा बाज़ार में रहने का। तो ये बात तो PSUs की हुई, NBFCs की हुई। अब चर्चा करते हैं जो आपका समझिए बहुत ही मजबूत गढ़ है, और वो है फार्मा स्पेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, द बेस्ट pharma fund manager is in front of us. Mr. Khemka has over the long term delivered supernormal return in his portfolio of the pharma space. If you look at since inception, the PMS performance of InCred Healthcare portfolio is a CAGR of 21% each year. It has beaten everybody. It has beaten the Alpha Index, the Healthcare Index, and all its peers to emerge on the top. The top 5-7 holdings are there in front of you in the screen. Healthcare Global Enterprises, this is a hospital chain. Diagnostic company Krishna, Thyrocare Technologies, Jubilant Pharmova, RPG Life Sciences. The details of all this portfolio are right there in front of you. Aditya ji, at this point of time, how is this portfolio looking? Is it adequately valued, or is there a lot of money to be had over the next 2 or 3 years in these stocks? So शैलेश जी, मैं ये बोलूँगा कि लास्ट के 2 साल में इस पोर्टफोलियो में पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न ऑलमोस्ट 75% रहा है, एंड इस पोर्टफोलियो की अर्निंग ग्रोथ लास्ट के 2 साल में ऑलमोस्ट 70% रही है। तो लास्ट के 2 साल में जो 75% रिटर्न इस पोर्टफोलियो ने बनाए हैं, उसमें से 70% अर्निंग ग्रोथ से आ रही है, सिर्फ 5% मल्टीपल री-रेटिंग से आ रही है। हमारा प्रोजेक्शन ये है कि अगले 3 साल में इस पोर्टफोलियो का अर्निंग ग्रोथ वापस 75% होने वाला है। इट विल बी 75% अर्निंग ग्रोथ ओवर 3 इयर्स। अभी लास्ट के 2 साल में 70 था, अब अगले 3 साल में 75 होगा। तो जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो 2 साल में सब्सटैंशियल हुआ है, बट आगे 3 साल भी मार्जिन एक्सपेंशन है, लेकिन उतना सब्सटैंशियल नहीं है जितना लास्ट के 2 साल में था। तो इसलिए हमें लगता है कि इस पोर्टफोलियो में अगले 3 साल में भी 75% अर्निंग ग्रोथ आएगी, और मल्टीपल हो सकता है जो 5% इन्होंने गेन किया लास्ट के 2 साल में वो लूज हो जाए, हो सकता है और 5% ऐड हो जाए मल्टीपल में, हो सकता है और 10% ऐड हो जाए। मल्टीपल को गेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी सेक्टर या किसी भी सेगमेंट के मल्टीपल को क्या होगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय ब्रॉडर मार्केट फोर्सेस, लाइक कि सिक्लिकल्स में क्या होता है, या कंजम्पशन में क्या होता है, या बैंक्स में क्या होता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द मल्टीपल ऑफ अ गिवन सेक्टर और अ गिवन स्टॉक। तो मल्टीपल पे मैं उतना गेस नहीं देना चाहता, बट हमारा प्रोजेक्शन ये है कि अगले 3 साल में गिवन बाय जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ते जा रही है, हमारा पर कैपिटा जीडीपी बढ़ते जा रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा उस इंक्रीमेंटल पर कैपिटा इनकम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हम हेल्थ केयर पे स्पेंड कर रहे हैं, एंड दैट इज विजिबल इन द डेटा दैट वी सी एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर। तो मेरे व्यू में ऑब्वियसली मल्टीपल री-रेटिंग यहाँ से हम ज्यादा नहीं सोचते, बट इट इज पॉसिबल कि हो जाए, क्योंकि अगर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी, अगर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पिकअप नहीं करता है आफ्टर दिस क्वार्टर, यानी कि इस क्वार्टर तो पिकअप हो गया, वो जीएसटी था या इनकम टैक्स कट था या जो भी था, बट अगर इस क्वार्टर के बाद वापस डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के ग्रोथ के नंबर्स कम आते हैं, तो द ब्रॉडर मनी मैनेजर्स विल हैव नो ऑप्शन बट टू डिप्लॉय कैपिटल इन पॉकेट्स वेयर देयर इज नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रोथ, एंड that is probably healthcare and education. They're the 2 pockets where there is non-discretionary growth. तो मुझे तो अभी सब अच्छा लग रहा है when it comes to healthcare, but yeah, multiples को क्या होगा ये broader market decide करेगा। जी, खेमका साहब, एक बाजार में हमेशा ये कश्मकश चलती है कि क्या हम सेक्टोरल कॉल ले रहे हैं, और क्या ये थीमेटिक कॉल का पोर्टफोलियो रह जाएगा कि भाई हमने फार्मा स्पेस के जो मिड कैप्स हैं जिसमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है, उनका एक 8-10 कंपनीज का एक ग्रुप बनाया और वो ख़रीद लिया। अब ये आप ही बता पाएंगे कि आप इसको एक फार्मा स्पेसिफिक स्कीम देख रहे हैं क्योंकि इसमें सारे फार्मा के स्टॉक हैं, या आपने एक ऐसा जमघट खरीदा है जहां पर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आने वाली है और ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि ये फार्मा कंपनीज हैं?
नहीं, आई थिंक दोनों स्टेटमेंट थोड़ा सा एग्जैजरेशन है। आई थिंक हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हमने 10 ऐसी कंपनीज खरीद ली जहां ग्रोथ सबसे अच्छा था रेट और वो सारे 10 हेल्थ केयर में निकले, ऐसा भी नहीं है। बट ये सोचना कि ये एक हेल्थ केयर है या थीमेटिक है, वो भी गलत है। उसका रीजन मैं समझाता हूँ आपको। सो जब हम बोलते हैं कि एक कंजम्पशन फंड है, तो एक कंजम्पशन फंड में हम बैंकिंग भी ले लेते हैं बिकॉज बैंकिंग फाइनेंसेस कंजम्पशन, हम रिटेल स्टॉक्स भी ले लेते हैं बिकॉज दे सेल यू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ले लेते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस कंजम्पशन प्रोडक्ट्स, राइट। सिमिलर एंड वो बास्केट फिर अपने आप में काफी डिवर्सिफाइड हो जाता है। वैसे ही अगर आप हेल्थ केयर के बारे में सोचेंगे तो देर इज अनब्रांडेड जेनरिक, ब्रांडेड जेनरिक, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, सीआरओ, सीडीएमओ, सो मेनी डिफरेंट इंश्योरेंस, सो मेनी डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स। जब मैं इन सबको एक पोर्टफोलियो में डालूंगा तो वो पोर्टफोलियो अपने आप डिवर्सिफाइड हो जाता है बिकॉज वो कोई एक थीम पे बेस्ड नहीं है। देर आर 7-8 सब थीम्स दैट आर प्लेइंग अंडर दैट वन थीम एंड हेंस इट बिकम्स डिवर्सिफाइड। सो मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो थीमेटिक तो नहीं है। अच्छा, अब सेकंड मैं आपको डेटा पॉइंट देता हूँ। इंडिया में ऑलरेडी 2012 में इंडिया वाज स्पेंडिंग 2.7% जीडीपी ऑन हेल्थ केयर। आज इंडिया 3.5% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ केयर स्पेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या शायद जी, कि अगर लास्ट के 10-12 साल में इंडिया का नॉमिनल जीडीपी 10% से कंपाउंड किया है, 10% कैगर ग्रोथ, तो हेल्थ केयर मार्केट 12 या 13% से कंपाउंड किया है कैगर ग्रोथ, राइट। और हेंस आपके हेल्थ केयर स्टॉक्स हैव एक्चुअली आउट परफॉर्म द ब्रॉडर मार्केट। सो अगर मैं सिर्फ इंडिया फोकस्ड हेल्थ केयर कंपनीज का एक इंडेक्स बनाऊं, जो कि हमने बनाया है यहाँ इनक्रेड में, और अगर हमने मानो 100 रुपए निफ्टी 50 में डाले होते 2012 में, जनवरी 2012 में, आज उसकी वैल्यू होती 420-425 रुपए। इसका मतलब कि आपका रियलाइज रिटर्न 11.5-12% के बीच में है कैगर। पर वही 100 रुपए अगर हमने इंडिया फोकस्ड हेल्थ केयर कंपनीज में डाल दिया होता, विच इज हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, ब्रांडेड जेनरिक्स, एपीआई, सीडीएमओ कंपनीज, इन चारों बकेट में डाला होता, तो उस 100 रुपए की वैल्यू आज 2012 में, तो उस 100 रुपए की वैल्यू आज हो जाती 1200 रुपए। दैट इज 25% कैगर रिटर्न्स ओवर 13-14 ईयर्स। मैं कोई 1-2 साल की बात नहीं कर रहा। सो ये सोचना कि हेल्थ केयर थीमेटिक है या सेक्युलर है या हेल्थ केयर सिक्लिकल है, वो आपको लगता है ऐसा क्योंकि जो हेल्थ केयर में लार्जर फार्मा कंपनीज हैं वो यूएस और यूरोपियन बिजनेस करती है जो सिक्लिकल है। बट अगर आप उन लार्जर फार्मा कंपनीज को हटा दो तो जो इंडिया फोकस्ड हेल्थ केयर है वो पूरा का पूरा सेक्युलर है। हाँ, स्टॉक्स में उतार चढ़ाव आते रहते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ गुड क्वार्टर, अ बैड क्वार्टर, अ गुड ईयर, अ बैड ईयर, वो होता है। लेकिन एकदम मतलब ओवर लार्जर टाइम फ्रेम्स इट आउट परफॉर्म्स एवरीथिंग एल्स इन आवर मार्केट। तो इसलिए हमारे हिसाब से हेल्थ केयर में एक एलोकेशन आपका परमानेंटली होना चाहिए बिकॉज दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट विद इन योर जीडीपी, वन ऑफ द फास्टर ग्रोइंग सेगमेंट्स विद इन योर जीडीपी। आपको एक और उदाहरण देता हूँ इस पे, जस्ट डेटा बता रहा हूँ आपको। तो यूएस में 1950 में $2400 पर कैपिटा इनकम था। यूएस 28% अपना जीडीपी का फूड एंड बेवरेज पे खर्चा करता था, 10% क्लोथिंग पे और 3% हेल्थ केयर पे। आज यूएस जो पहले 28% खर्चा करता था फूड एंड बेवरेज पे, आज वो नंबर हो गया 12%। जो 12% क्लोथिंग पे खर्चा करता था वो नंबर हो गया 3%। और जो 3% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्चा करता था वो नंबर आज हो गया 19%। तो हमने यूएस के लेसन से क्या सीखा कि जैसे जैसे आपका जीडीपी बढ़ता गया, आपका फूड का परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम हो गया। फूड मार्केट इन यूएस हैज ग्रोन ओवर द past 7 decades, but it has grown slower than GDP. Clothing market has also grown in the US over the past 7 decades, but it has grown significantly slower than GDP. And healthcare market has grown significantly faster than GDP. Hence, as a percentage of GDP, it is going up. Now, अगर आप इमेजिन करो कि इंडिया में भी यही होगा, जो कि होगा, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि इंडिया का 3.5% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर स्पेंड विल गो टू 19, प्रोबेबली नॉट, बट कैन इट गो टू 10, कैन इट गो टू 8, कैन इट गो टू 12? यस इट कैन। सो क्योंकि आप देखेंगे ब्राजील, रशिया, मेक्सिको, इन सब की यही नंबर है, 8-9-10 के आसपास है। तो अगर हम उस लेवल पे पहुंचेंगे, इसका मतलब क्या है कि अगले 10, 15, 20 साल, 50 साल अगर इंडिया का जीडीपी 10% पे ग्रो होगा, तो अगले 10, 20, 50 साल इंडिया का हेल्थ केयर मार्केट 12, 13, 15% से ग्रो होगा। एंड हेंस ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए, या फिर ये पीएमएस आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए बिकॉज इट बिकम्स अ गुड फिट। नाउ एक बार वैल्यूएशन पे ध्यान देते हैं। लेट्स लुक एट द फूड एंड बेवरेज स्टॉक्स ऑफ इंडिया। व्हाट आर द वैल्यूएशन मल्टीपल्स दे आर ट्रेडिंग एट शायद जी? 70p, 80p, 90p? Let's look at the clothing stocks in India. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ. Let's look at the clothing stocks in India. What valuation multiples are they trading at? 7, 80, 90 P multiples, right? And what are healthcare companies trading at? 40, 50. तो जो सेगमेंट फास्टेस्ट ग्रो होने वाला है विद इन जीडीपी, उसका 40-50 पी है, और जो सेगमेंट जीडीपी से स्लो ग्रो होंगे उनका 70, 80, 90 पी है। ये एक वैल्यूएशन आर्बिट्राज है।
एंड दैट इज वेयर वी आर फोकस। हाँ, क्या बात है। अब ये बताइए आदित्य जी, यहाँ से आईटी कंपनीज का क्या होगा? आपने कहा आप उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो अंधेरा है ये कुछ और समय तक चलेगा। दिक्कतें हमारे सामने हैं ही, सबको पता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करती हुई दिख रही है। लेकिन जो आपने वैल्यूएशन आर्बिट्राज की बात करी, वो तो आपको आईटी कंपनीज की तरफ भी दिख रहा है, along with very strong balance sheets, debt free status of the company, very good managements and very strong business sense। तो वहाँ पर आप अभी तक नाराज हैं उनसे? नहीं, सो एक्चुअली क्या है शैल जी कि दो रास्ते हैं यहाँ पे आईटी कंपनीज के पास, इफ दे डोंट इवॉल्व। सी मेरी प्रॉब्लम आईटी कंपनीज के साथ ये है कि लास्ट के 20 साल में ये लोग इवॉल्व नहीं हो पाए हैं। ये पहले भी सपोर्ट सर्विस थे या आज भी सपोर्ट सर्विस ही कर रहे हैं 20 साल से। नाउ व्हेन यू आर अ सपोर्ट सर्विस यू आर इन अ कमोडिटी बिजनेस, और उस कमोडिटी बिजनेस में प्राइस कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप टीसीएस से बात कर लीजिए, इन्फोसिस से बात कर लीजिए, एचसीएल टेक से बात कर लीजिए, दे विल टेल यू कि डील विंस आर बिकम इंक्रीमेंटली डिफिकल्ट, बिकॉज वो सब जाके सेम डील पे बिड करते हैं एंड देन जो कम भाव पे बिड करता है उसको डील मिलती है। मोस्ट लाइकली दैट इज गोइंग टू बी द सिचुएशन। सो जब आप कमोडिटी साइकिल में फंस जाते हो तो प्रॉब्लम ये होता है कि फिर आपकी ग्रोथ और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी दोनों प्रेशर में आ जाती है। नाउ बिकॉज आपने इवॉल्व नहीं किया, आप अभी प्रेशर में हो। अब इस प्रेशर से आप दो ही तरीके से निकल सकते हो, या तो पूरा ग्लोबल मैक्रो चेंज हो जाए, आईटी स्पेंडिंग गोज टू द रूफ एंड आपको और कॉन्ट्रैक्ट विंस मिलने लग जाए, विच इन माई माइंड इम्प्रॉबेबल है, इम्पॉसिबल नहीं है बट इम्प्रॉबेबल है। प्रोबेबिलिटी बहुत लो है वो सिनेरियो वापस आने की। द सेकंड सिनेरियो इज दैट यू यूज योर बैलेंस शीट। जो आपने कहा कि इनकी बैलेंस शीट, इनका कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट इज ट्रू, इनका बैलेंस शीट अमेजिंग है। सो यू यूज योर बैलेंस शीट एंड यू बाय सम ऑफ दिस एआई एमएल प्लेटफॉर्म्स व्हिच यू शुड हैव डेवलप्ड इन हाउस, बट बिकॉज यू मिस द बस यू आर बाइंग यू नो द कैपेबिलिटी बाय पेइंग अ सम ऑफ कैपिटल। तो अगर ये लोग बायआउट्स करते हैं तो उस टाइम पे फिर ये देखना पड़ेगा कि जो बायआउट इन्होंने किया है उसका आरओई क्या है, उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, उसका अर्निंग्स क्या है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ बाइनरी इवेंट हो जाता है। इफ दे डू वेरी वेल इन द बायआउट, इफ दे गेट अ ग्रेट क्वालिटी एसेट एट अ चीप प्राइस, तो इनके स्टॉक्स यहाँ से सिग्निफिकेंटली रिकवर हो सकते हैं और बहुत पैसा बन सकता है। बट इफ दे एंड अप बाइंग गुड क्वालिटी एसेट एट अ ऑब्नॉशियस प्राइस, जो कि आज एआई में कहीं भी वैल्यूएशन ऑब्नॉशियस से कम नहीं है, तो इफ दे एंड अप बाइंग एट एन ऑब्नॉशियस प्राइस तो इनका वो इन्वेस्टमेंट का आरओई बहुत कम होगा, हेंस इनका हो सकता है शेयर होल्डर रिटर्न यहाँ से भी इंप्रूव ना हो। And if they don't do anything in the AIML space, तब तो anyways, they are in a very commoditized business and they will continue to be there. तो मुझे hence probabilistically speaking मुझे नहीं लगता बहुत पैसा बनेगा, hence we are staying away from IT. जी, मेरा आखिरी सवाल आदित्य जी ये है, ब्रॉडर मार्केट पर हम लोग बहुत ही कठिन दौर से गुजरे 2025 में, लेकिन अब 4 टेलविंड हमारे साथ हैं। रेट कट हो चुका है ब्याज के दरों में, इनकम टैक्स के कट्स आए हैं तो डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, जीएसटी रेट कट हुआ और मॉनसून भी बहुत अच्छी थी। इन 4 पॉजिटिव्स के सामने क्या आपको कोई नेगेटिव दिखता है बाज़ार में जो इस सिचुएशन को यहाँ से ख़राब कर दे? एक ही पोटेंशियल रिस्क है इस पूरे थीसिस में शैल जी, और वो है आपका इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर आप ब्याज दर कम कर रहे हो, अगर आप टैक्स रेट्स कम कर रहे हो, आप पैसा इन्वेस्टर्स के हाथ में या इंडिविजुअल्स के हाथ में दे रहे हो, तो दैट कैन लीड टू इन्फ्लेशनरी सिनेरियो। ना अगर इन्फ्लेशन होता है तो जो आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा है, मानो अगर डिस्पोजेबल इनकम 5% बढ़ी है और इन्फ्लेशन भी 5% हो जाता है, तो आपका डिस्पोजेबल इनकम एक्चुअली नहीं बढ़ा है, बिकॉज लाइक फॉर लाइक यू आर इन द सेम प्लेस। और अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम 5% बढ़ता है लेकिन इन्फ्लेशन 6% हो जाता है, देन आपका डिस्पोजेबल इनकम एक्चुअली घट गया है इन रियल टर्म्स। तो मुझे इन्फ्लेशन सीम्स लाइक अ बिग रिस्क ग्लोबली। मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा इसमें, ग्लोबली बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबली सबको ही रेट कट करना चाहते हैं। ग्लोबली सबको दिख रहा है सामने रिसेशन, ऑल सेंट्रल बैंक्स आर ट्राइंग टू प्रिंट मनी, एंड जब ऐसा होता है इसीलिए आप देख रहे हैं कि गोल्ड, सिल्वर, मेटल प्राइसेस दे आर गोइंग अप, बिकॉज एंड ऑफ द डे द नंबर ऑफ एसेट इज लिमिटेड एंड द नंबर ऑफ मनी प्रिंटेड इज जस्ट गोइंग अप। तो मुझे लगता है कि अगर इन्फ्लेशन अपना सर दिखाता है तो आज आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पोर्टफोलियोज हैं, दे हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू देयर पोर्टफोलियो मैनेजर्स और देमसेल्व्स हु मैनेज देयर ओन पोर्टफोलियोज,
कि मेरे पास ऐसा कितना एक्सपोजर है जो अगर इन्फ्लेशन 4, 5, 6% पहुंच जाता है, वो पोर्टफोलियो में वो कंपनीज उस इन्फ्लेशन को बेयर कर पाएगी, अपना मार्जिन पे हिट नहीं आने देगी। दैट इज द की क्वेश्चन आई एम आस्किंग माई एनालिस्ट टीम टुडे, कि तुम्हारे कवरेज यूनिवर्स में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनका कॉस्ट अगर 100 का 105 हो गया तो वो अपना रेवेन्यू 150 का 155 या 160 कर सकता है। मुझे वो कंपनीज के बारे में बताओ। तो आज मेरे नजरिए से देखेंगे तो सबसे बड़ा रिस्क अपने मार्केट को इन्फ्लेशन है। अच्छा, और ये जो यूनिवर्स जिसके बारे में आपने चर्चा करी, ऐसी कितनी कंपनियां होंगी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो लिस्टेड हैं जहां पर ये इन्फ्लेशन को हजम करने की शक्ति है? 10%। अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स के हिसाब से पूछते हैं तो इंडिया में 5,500 स्टॉक्स लिस्टेड है ऑलमोस्ट। आई डोंट थिंक मोर देन 10%, यानी कि 500 से ज्यादा कंपनी नहीं मिलेगी आपको जो अपना ग्रॉस मार्जिन, अपना EBITDA मार्जिन अक्रॉस इन्फ्लेशन साइकिल्स मेंटेन कर पाई हो। चलिए इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं और अगली बार इन 10% कंपनीज में कितनी आपके पोर्टफोलियो में हैं उस पर चर्चा करेंगे। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभार। इतनी अच्छी तरीके से आपने समझाया कि फार्मा कितना आवश्यक है और कितना बड़ा इसमें अभी भी आगे एक मंजर और दरिया है जो हमें पार करना है। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू शैल जी। That, ladies and gentlemen, was Mr. Aditya Khemka, Chief Investment Officer at InCred Asset Management. He runs a very popular and extremely profitable PMS scheme and holds a very strong view that given the rising GDP that we have and rising income, pharma is a space which will be able to beat inflationary costs at a very easy pace. Thank you for watching. There is more that's happening on the other side of the break as far as BTTV is concerned. Please remain glued.